Hello friends, I welcome you all to this YouTube channel. Friends, we were discussing 10 MCQs for upcoming JKPSC examination. So in this series we have come again yet with another video of these 10 MCQs which will be quite helpful in your upcoming examination. So friends, if you like our content, if you are liking the initiative which I have taken, kindly subscribe it and share it to others as well so others may also benefit from it. So without ado, let's start today's session. Friends, the very first question is, what is hydroelectricity? It is the production of electricity from hydropower plants using water vapor. B. The generation of electricity through the absorption of moisture by certain materials. C. A type of electricity generated by harnessing the energy from the tidal waves. Or is it D. The process of converting humidity in the air into electrical energy? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया एआई. फर्स्ट, India AI is a joint venture between the Niti Aayog and CERT-In. CERT-In is Computer Emergency Response Team. IN means India. ठीक है. Second is, it is knowledge portal, research organization and ecosystem building initiative focused on preparing the nation for an AI driven future. Which of the statement given above is correct? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, or D. neither 1 nor 2. तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, 2 ओनली. सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, सॉरी फर्स्ट वाली गलत है. क्यों? चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों. इंडिया एआई इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड द नेस्कॉम. It is a knowledge portal, research organization and ecosystem building initiative focused on preparing the nation for an AI driven future. ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. So friends, next question in the series is, with reference to Semicon India conference, consider the following statements. 1. It is an annual conference organized by the Niti Aayog. Second, it aims to showcase India's capabilities in semiconductor design and manufacturing. Which of the statement given above is or are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, or D. neither 1 nor 2. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, 2 ओनली. ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली गलत है क्योंकि इसको नीति आयोग नहीं दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज करवाता है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन. ठीक है, इट इज़ एन एनुअल कॉन्फ्रेंस, इट इज़ एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन एंड नोट बाय नीति आयोग with the primary objective of promoting the growth and development of India's semiconductor industry. दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? इट एम्स टू शोकेस इंडियाज कैपेबिलिटी इन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग वाइल फैसिलिटेटिंग नेटवर्किंग एंड नॉलेज एक्सचेंज अमंग पार्टिसिपेंट्स. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग WTO's एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर. A. It entered into force with the establishment of the WTO. B. It is aimed to remove trade barriers and to promote transparent market access and integration of the global markets. C. The WTO's Agriculture Committee oversees implementation of the agreement and provides a forum for members to address related concerns. दोस्तों, how many of the above statement given are correct? A. 1 only, B. only 2, C. all 3, or D. none. तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट्स सी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों. ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. दोस्तों WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ द WTO. इट वाज नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द यूरुग्वे राउंड. दोस्तों ये याद रखना, पूछ सकते हैं आपको कौन से राउंड में नेगोशिएट की थी. सो इट इज यूरुग्वे राउंड. ठीक है, of the General Agreement on Trade and Tariffs and enter into force with the establishment of WTO on 1 January 1995. It is aimed to remove the trade barriers and to promote transparent market access and integration of the global markets. The WTO Agriculture Committee oversees the implementation of the agreement and provides a forum for members to address the related concerns. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. Recently, India has signed a memorandum of understanding with which country to establish local currency settlement system for using local currencies for cross-border transaction. A. Sweden, B. France, C. Sudan, or D. UAE.
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स डी, यूएई, क्योंकि इंडिया और यूएई ने दोनों ने लोकल करेंसी एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम इंडियन रुपीज़ उनको दिया करेंगे और वो अपनी लोकल करेंसी हमको एक्सचेंज करेंगे, ताकि अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी हो तो उसी लोकल करेंसीज में कर सकें, सो एज टू नॉट मेक, ताकि हम डॉलर का यूज़ मिनिमाइज कर सकें, ठीक है, डॉलर की वैल्यू को कम कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट इज ए एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड द म्यांमार, बी ए डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स ईस्टर्न नेबर्स, सी ए जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव ऑफ सम एशियन कंट्रीज, और इज डी ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। दोस्तों आई बिलीव इट्स क्वाइट सिंपल, सो यू मस्ट बी नोइंग इट्स आंसर। इट करेक्ट आंसर इज सी, ए जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव फॉर सम एशियन कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके। दोस्तों मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन इज सब रीजनल कॉर्पोरेशन कंप्राइजिंग इंडियन 5 आसियान कंट्रीज। ठीक है, आसियान, दोस्तों इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, तभी लिखा हुआ कंप्राइजिंग इंडियन 5 आसियान कंट्रीज। ठीक है, नेमली कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड द वियतनाम। देखो ये 2000 में लॉन्च किया गया था लाओस की कैपिटल विनीशियन में। ठीक है, इट्स एम इज़ टू फैसिलिटेट क्लोजर कॉन्टैक्ट्स अमंग द पीपल इनिबेटिंग दीज टू मेजर रिवर बेसिन्स एंड इनहेंसिंग कॉपरेशन इन टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, so next question is consider the following statements. First, Article 21A guarantees the right to free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14. Second, Article 23 of the Constitution India prohibits the employment of children below the age of 14 in hazardous occupation. And 3, Article 24 of the Constitution of India prohibits trafficking in human beings and forced labor. How many among the correct statement given statement is are correct? Only one, only two, all three, or D none? दोस्तों ये पॉलिटी का बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स ए। सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है दोस्तों, सेकंड और थर्ड गलत है, क्योंकि इनकी जो एक्सप्लेनेशन है इन्होंने क्रॉस कर दी हुई है, इंटरचेंज कर दी हुई है। तो आर्टिकल 323 होता है बेसिकली it prohibits trafficking in human beings and forced labor, and Article 24 basically states to prohibit the employment of children below the age of 14 hazardous occupation। ठीक है दोस्तों, पहली वाली सही थी। 21 है, it deals with the free and compulsory education of the children between the ages of 6 and 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Friends, who designates an advocate as senior advocate? A, advocate himself, B, Bar Council of India, C, governor, और D, none of the above। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस डिक्लेयर करते हैं एक जज को, एक एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस करते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर इट वाज द चीफ जस्टिस एंड जजेस हु डेसिग्नेट एन एडवोकेट एज सीनियर एडवोकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों तानकाई मेथड इज एसोसिएटेड विथ ए पोट्री, बी ज्वेलरी मेकिंग, सी शिप बिल्डिंग, और डी सॉइल प्रिपरेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, शिप बिल्डिंग। तनकाई मेथड इज एसोसिएटेड विद शिप बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों तनकाई मेथड इज एन एंशियंट शिप बिल्डिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट शिप्स रादर देन यूजिंग नेल्स। This method offers flexibility and durability to the ships, making them less susceptible to damage from the shoals and sandbars. This 2000-year-old shipbuilding technique will be preserved and brought back to life. ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर में था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन 2। Which of the following act granted a monopoly of the opium trade to the British East India Company, allowing the company to control and regulate the opium business in the India? ठीक है दोस्तों, पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1830, और डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इट्स चार्टर एक्ट ऑफ 1830 विच अलाउड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ओपियम बिजनेस इन द इंडिया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो काइंडली शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब टू इट एंड आल्सो हेल्प अदर्स टू नो अबाउट दिस चैनल। चलिए दोस्तों, अगर कुछ फीडबैक देना है आप हमको दे सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे। थैंक यू।